साथ आज मैं एक स्पेशल एडिशन करूंगा अभिनव चतुर्वेदी जी के साथ. Now this is going to be a special edition on Bollywood exclusively with Abhinav Chaturvedi. Abhinav Chaturvedi doesn't need any कि मैं उनके बारे में बताऊं, दुनिया जानती है, नाम पता है सबको, लेकिन फिर भी एक प्रोग्राम का एक शेड्यूल होता, एक सिस्टम होता है, उसके तहत मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन है अभिनव चतुर्वेदी. अभिनव चतुर्वेदी इज अ क्रिकेटर बाय प्रोफेशन, actor, director, anchor, entertainer, master of ceremonies and Thailand brand ambassador. Other than that, he is a goodwill ambassador for Tribes India and Tribe Fed. कुछ चीज बची नहीं है जहां तक मेरे को लग रहा है. अभिनव जी ने कुछ भी नहीं छोड़ा है लाइफ में, सारी चीजों में है, एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए. खास बात, आज जो उनसे खास बात करने जा रहा हूँ वो एक्सक्लूसिवली बॉलीवुड से रिलेटेड है. और बॉलीवुड से इसलिए क्योंकि अभिनव जी इनसाइड आउटसाइड बॉलीवुड को अच्छे से जानते हैं. लाइफ को बॉलीवुड के अंदर अप्स एंड डाउन्स को देखते हुए किस तरह रहना चाहिए, वो एक इंस्पिरेशन है. बाकी बात मैं अभिनव जी से कहूंगा, अभिनव जी अपने बारे में थोड़ा सा बताएं. हालांकि ऐसे जैसे मैंने पहले भी कहा कि अभिनव जी को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बट स्टिल अभिनव जी आप अपनी लाइफ के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए. थोड़ा सा आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए एक रोल मॉडल की तरह आप ये बताइए कि बॉलीवुड में आने के बाद आपको किस तरह से रहना चाहिए ताकि आप वहां पे जो सक्सेस मिले आपको उसको आप एक्सेप्ट कर पाए, दुनिया को भी दे पाए और खुद भी नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग की तरह रहे. इस पे आप अपनी राय रखें प्लीज. मुरली जी, सबसे पहले तो आपका अनेकानेक आभार कि आपने मुझे अपने शो पर आमंत्रित किया है. मैं इसको हृदय से स्वीकार करता हूँ आपको कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके साथ बैठूं. आपके 100 क्वेश्चन हैं. पहला सवाल क्या है, मैं सिलसिलेवार तरीके से चलता हूँ. मैं बात करना चाहूँगा सबसे पहले अपनी पेरेंटहुड के बारे में. My grandfather was head of the department in Agra University for 36 years in mathematics. Okay. My father, late Abhay Chaturvedi ji, taught at the modern school Barakhamba Road, New Delhi. He joined the school in 1961 and retired as a headmaster in 1996. My mother, she's a PhD in Hindi literature, and she's done her PhD on a very reverend journalist who's no more with us, Shri Udayan Sharma ji. His father आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने के ऊपर मेरी मदर ने जर्नलिज्म में अपनी PhD की है. And from my mother's side, her great grandfather was the editor of a newspaper called Vishwamitra in 1910 in Calcutta. And my mother also taught at the modern school, junior modern school. Then she became the principal of Gyan Bharati School in Saket. And my chacha, who's also no more with us. I'm the only child of my parents. I don't have any brothers, sisters. And so did my chacha, did not have any children. And he's done his PhD in organic chemistry from Moscow State University in Russian language. And he was the scientist, he was the joint director with CSIR. And my mother is 80. My wife, I'm married to Nandini Chaturvedi. She's from Indore, and she has got her own event management company. My son Ayushman Chaturvedi is 25 and he's playing professional football, trained in England. Now played for Mohan Bagan for 2 years. His last assignment was George Telegraph for the Calcutta Football League. Played the ISL 2 for Minerva, Punjab. And my daughter, presently, she's 22 and she's a graduate from Roehampton University in Greco-Roman mythology in Greek language. And she's now preparing for a master's in linguistics. So the overall scenario has been very academic as far as I'm concerned. I'm an accidental actor. I never wanted to become an actor. मैं actor बनना नहीं चाहता. My father was a renowned Hindi commentator, Abhay Chaturvedi, the first generation, with Melville Sahab, Jasdeep ji, Narottam Puri ji.
Lala Amarnath ji, Ajit Wadekar sahab, and Bapu Nadkarni, Sunil Gavaskar. And I failed my audition 2 years prior to Hum Log. I was in child artist with All India Radio. I started very early. My first play was with Mr. Om Shivpuri. He used to be our neighbor in modern school at the age of 5. And incidentally, I played a child role. I played Sushma Sethji's son, not knowing that after in 84, my grandmother in Hum Log. So I never wanted to become an actor. और plays करते थे स्कूल में. I was the cultural prefect also of the school. But ऑडिशन फेल किया तो मेरा सारा कंसंट्रेशन क्रिकेट में चला गया था. I played my first nationals against Sanjay Manjrekar in class 11 in Ahmedabad for the CK Naidu Trophy. Then I played the Kuch Bihar Trophy, both under 19 and under 22. Went on to St. Stephen's College to do my post-graduation in history on the basis of sports. इतने कट ऑफ तो आते नहीं जितने आजकल आते हैं. वो 3 साल में मिला के नहीं आते थे. तो हम लोग का सक्सेस इतना फिनोमिनल हुआ किसी ने सोचा नहीं था. दैट्स ऑल थैंक्स टू मिस्टर मनोहर श्याम जोशी's power of the pen, that it's 36 years and people still remember. One generation knows them, one generation does not know me. Like my children have not seen हम लोग. वो मैंने अपने जनरेशन में देखा है. मैंने देखा है. हमारी और आपकी जनरेशन ने हम लोग देखा है. हाँ. लेकिन ये कहते हैं मतलब बहुत मजेदार था. एक एपिसोड है यूट्यूब पर. अनफॉर्चुनेटली दूरदर्शन के आर्काइव में इसका एक भी टेप भी नहीं है. कोई बात. वो 25 इयर्स पे स्टार न्यूज़ ने ब्रेक कर दी स्टोरी. तो माई सिलेक्शन वॉज not done, so I started concentrating कि भाई मुझे क्रिकेट में जाना है. तो I captained Delhi State under 19 in the CK Naidu Trophy in Guwahati, and you'll be shocked and surprised and happily surprised to see we reached the finals. We defeated the reigning champions Gujarat, who were taking the trophy for last 3 years, and we packed them. उस ज़माने में कोई ऐसा फ्लाइट वाइट तो होती थी, सेकंड क्लास के डब्बे में भर के भेज दिए जाते थे. जाओ. हाँ, और क्या. दैट वाज क्रिकेट. पैसा कहाँ था. सही बात है. अभी सोचता हूँ अभी IPL खेल रहे होते तो क्या करते. तो वेरी ट्रू. तो वी पैक द टीम ऑफ in 1.5 day by an innings defeat and send them back from Guwahati to Ahmedabad. Okay. अब वहाँ पे मच गया हड़कम कि यार ये कौन सी टीम आ गई जिसने रेनिंग चैंपियन को हरा दिया. So we beat Assam in the semi-finals and we reached the final. And you'll be happily surprised that against me I was captain Delhi State, and in came a leg spinner, a short size, about pocket size edition, very hard hitting batsman and a very fine leg spinner, and his name is Vishal Bharadwaj, the Vishal Bharadwaj. Okay. So Bunty and I, we go back from 1982 when there was no Nanne. And then I was selected for the Indian schoolboys to go to West Indies under Maninder Singh, but my father didn't allow me because he said, are you ready for 15 दिन बच गए थे हमारे बोर्ड एग्जाम में. तो Honorable Chief Minister पढ़ना पड़ेगा और वो मुझे मंजूर नहीं. So I dropped out. I didn't drop out, but I went on to take my boards and passed with a decent 64%. And my father said, you can continue your cricket in college. And then I went on to play the under-22 North Zone with Manoj Prabhakar as my captain. And then I attended 3 Ranji Trophy camps with Vishen Paji. उसी दौरान सेकेंड ईयर में हम लोग आया. तो
मनोहर श्याम जोशी के बेटे अनुपम जोशी मॉडर्न स्कूल में पढ़ते थे, तो स्क्रिप्ट लिख रहे थे, तो आई एम अ वेरी गुड मिमिक एंड आई कैन सिंग वेरी वेल एंड आई वाज अ क्रिकेटर, सो वो नन्हे का जो कैरेक्टर है वो यही था. देयर वाज अ सॉन्ग कॉल्ड नन्हे बनेंगे गावस्कर एक दिन, which is I sang that to Sunny Bhai and I sang in front of me when I met him at the Big Picture Summit with CII. So I bowled 7 overs to Sunil Gavaskar at Wankhede Stadium in a Film Stars cricket match. Okay. So even in your dreams, if you bowled physically, and I bowled it 7 overs to him, वो single ने touch करके, says very sharp, good. So he took a very interest because he was playing a bowler. So my father was approached by Mr. Satish Garg, who was then the executive producer on behalf of Doordarshan, कि उनका भाई पता लगाओ ये लड़का कौन है. तो मेरे फादर मेरे पास आए, बोले तुमको ऑडिशन के लिए जाना है. तो मैं बहुत नाराज हो गया उनसे. I have no plays, I have done nothing, I am concentrating market. आप बोल रहे हो फेल हो, फिर फेल कर देंगे. बोले क्या हो, दोबारा फेल हो जाओगे. मैंने आपको तो कुछ लगता नहीं. बोले क्या हो, लर्न टू टेक फेलियर, जाओ. अच्छा, मैं अपने फादर की बात कभी टालता नहीं था, तो आई वेंट अहेड एंड टुक द ऑडिशन. उन्होंने मुझसे कोई किशोर कुमार का गाना सुनने को कहा. सुना देता हूँ आपको लाइन, अगर चाहे तो. हाँ हाँ बिल्कुल सुनाइए ना. ये रूप की दौलत वाले कब सुनते हैं दिल के नाले, तकदीर ने बस में डाले इनके किसी दीवाने को, जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को. अब उन्होंने कहा आप मिमिक्री करिए. जानी हमारा नाम नन्हे है, हमसे मिलने से पहले हमारे कपड़े तो देख लो और निगाहें तुम्हारी हमारे जूते की तरफ होनी चाहिए, हमसे आंख नहीं मिलानी चाहिए. So, out of the selection was done and rest is history. And before I could realize, the audience was great enough and gracious enough to, and it was so beautifully directed and scripted. The content was so strong. हम लोगों की बहुत ही सादा शूटिंग होती थी. विनोद नागपाल जी ने तो 3 या 4 कपड़ों में पूरा सीरियल निकाला. सीमा भार्गव दीदी ने बड़की दीदी ने कम से कम 4-5 साड़ियाँ होंगी. मैं अपने भाई की शर्ट लेके भाग जाया करता था, क्योंकि वो उसको कैरेक्टर को दिखाया रोज कुछ नया करना है. तो मेरा भाई इज माय कजन अभिजीत चतुर्वेदी, आई हेट हिम टू कॉल हिम माय कजन, मुझे गालियां देगा. यंगर ब्रदर अनिमेश, तो उनकी शर्टें मुझे वेरिएशन चाहिए होता था. मेरा कैरेक्टर की डिमांड थी, और पैसे मिलते नहीं थे कपड़े खरीदने के, अपने लाने पड़ते थे. तो मैं अपने भाई की शर्ट पहन के भाग जाया करता. अब वो एपिसोड में देखे, हे यार तूने मेरी शर्ट पहन ली, अब मैं सबको बताऊंगा तूने मेरी शर्ट पहनी. So, within the family parameter, we are a joint family. We have an extended family. And then the result was, I went on to be selected for Bunyad when Mr. Ramesh Sippy came from Mumbai to do an audition in Himachal Bhavan. And I was taken by the little finger by Ramesh ji, and I call him my university of television and filmmaking, to have got the opportunity of working with the legend, the Sholay director, and to spend about 2 years. Then I did a film with him called Bhrashtachar with Rekha ji, Mithun Da, and D. Rajnikant. And I've seen those shots live in front of me. I've got 2 or 3 scenes in that movie with him. I absolutely like. And my first feature film, I was the first Indian television actor to get a full-length feature film before Shah Rukh Khan happened. Okay.
Shahrukh and I, we played hockey together against each other while he was playing for Columbus and I was playing for Modern School. And Shahrukh Bhai's sister Shahnaz used to be our senior from school. So I was doing a serial called Nai Dishai with Vivek Vaswani, and I did another serial called Aaj Ki Taza Khabar written by late Khwaja Ahmad Abbas साहब जिन्होंने सात हिंदुस्तानी बनाई थी. तो के साहब का serial था आज की ताज़ा खबर. उसके कैमरामैन थे नदीम खान, and Nadeem Bhai suggested my name to Raman Kumar ji, and that's how I got my full-length feature film with 7 songs, and the music was by Khayyam Saab. Okay. As a lead, which was shot in a place called, it's a very highly sensitive place right now in Kashmir, which is Sopore and Kupwara. Oh. So that was shot in the O Valley, the Lolab Valley, the last film to be shot there. Now there are different kind of shots being called there, unfortunately. But we'll take care of them. That's not an issue. But then, you see, with Bunyad, we cross the borders of liking in those good harmony days. I've got several fans, even from it's very, very humbling, from United States of America to Canada to UK to Mauritius to Afghanistan to Fiji to China to Myanmar to Bangladesh to Hong Kong to Ho Chi Minh City, and and from India pan and out, from Gujarat to Nagaland, from Sikkim. I've got a very beautiful friend, Kokila Dakal. She sings very well. And you are nobody but a party of fans. It's the audience who's the king. And with all respect, because they still have a lot of liking and respect, though I've not done much work for television, and I received the last year I received the 19th Indian Television Academy Award, the Madhya Pradesh Academy Award by Indian Television Academy. They put me there, thanks to Shashi Ranjan and his wife Anu Ranjan, and that was in my Sasural. So then I did about 7 feature films. Parbat Ke Us Par, Bhrashtachar, then Yodha with Sanjay Dutt, Sunny Deol, directed by Mr. Rahul Ravel. Then a movie called Jeevan Ek Sangharsh with Anil Kapoor, Madhuri Dixit, Suryavanshi with Salman, and my classmate Amrita Singh. We studied from class 1 till 12th. And a film called Baz with Govinda. And my last film in 91 was Saudagar with Subhashji, Mr. Subhash Ghai, and with legends like Dilip Saab and Rajkumar Saab. I played Rajkumar Saab's grandson. So, as far as the industry is concerned, with all the country. By the way, I'd like to tell you that I auditioned again, which I failed, because casting has a particular, and that film was directed by none other than my friend Vishal Bharadwaj. Okay. And he called me up one night and says कि यार मैं चाहता हूँ तो विलन का रोल दे. एक अच्छे सीधे साधे आदमी में एक मतलब एक कुत्ता टाइप का दिमाग है, वेरी फिल्मी है. सॉरी टू यूज दैट वर्ड बट क्रैश वर्ड. तो वो तो उसका स्कीमर है वो बहुत. I've got the right word. He's a schemer, he's like very, and उसके चेहरे is like a poker face. So बड़ा मजेदार किस्सा है. He sent a guy from his assistant from Mumbai and I took that audition. और सिर्फ सीन आया था तो मैंने करके भेज दिया. मैंने कहा विशाल एक बात मैं करूँगा सीन, अगर तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगे तो हमारी दोस्ती में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. बोले डन. सो व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, यार फैंटास्टिक ऑडिशन, मज़ा आ गया. 6 दिन के बाद फ़ोन आता है, यार क्या करूँ मैं, पागल हो जाऊँ. मैंने कहा क्या हो गया. दैट फिल्म इज़ हैदर. Okay. So I was supposed to play the role of what Mr. K.K. Menon eventually did.
तो बंटी told me, says, यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तब्बू जी का husband. So because of the face structure, because of physical structure, see, every character has to have a proper height. And what K.K. Menon did, I think he's a brilliant actor and a superb film. Superb actor. So, coming back to what you said earlier, that, my life has been a roller coaster. तो कभी ऊपर गया हम लोग बुनियाद और ऊपर फिर पिक्चर फ्लॉप हुई दाढ़ नीचे. मतलब ईसीजी का ग्राफ ऊपर नीचे जैसा होता है, मेरा तो रोलर कोस्टर. और I have failed. I've not perhaps done so much work than the kind of rejection that I've faced in my life. And I happily accept rejection becomes strong. अगर आप रिजेक्शन को स्वीकार करते हैं, आप पे उंगलियां उठती हैं, you're a flop actor. So it's all the more reason to put a challenge to yourself, I'll come back. Anything. You take the example of cricket. How many people have made comebacks? The latest example is Mohammad Shami. Yes, very true. With all against in terms of personal life pressures, the man fought forward. And we've got n number of comeback stories. Amitabh Bachchan ji, forget about हमारे तो वो पितामह हमारी नस्ली है. He was written off. And I'm holding a letter in which I congratulated him while the BBC polls. He never lost his head. And he came back like what? So these people are who inspire you to understand what makes them what they are. A, hardcore disciplinarians of time. देखिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, जिस फेथ को आप मानते हैं उसकी पूजा करनी चाहिए, आपको इबादत करनी चाहिए, ज़ियारत करनी चाहिए, आपको चर्च जाना चाहिए, आपको, मैं गुरुद्वारे भी जाता हूँ, मैं सब काम करता हूँ. लेकिन मैं सबसे बड़ी पूजा जो मैंने अमिताभ बच्चन जी से सीखी है वो है समय की पूजा. आप भी अपना समय दे रहे हैं मुझको, मैं आपको समय दे रहा हूँ. लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ द क्वालिटी टाइम दैट हैज बीन स्पेंट. सो इफ यू रिस्पेक्ट टाइम, आप समय की इबादत करेंगे, आप समय की पूजा करेंगे, तो फिर वक्त आपकी पूजा करेंगे. लेकिन आपको कॉन्स्टेंटली पहले समय को खुश करना पड़ेगा कि हाँ, यू आर केपेबल एंड यू शुड बी गिवन दिस chance yet another time. The universe gives you a lot of opportunities. So the film industry part, I am grateful to all my senior actors. दिलीप साहब के साथ मैंने सुभाष जी को असिस्ट किया सौदागर की, तो मेरे से 5-6 सीन थे. मैं तो पागल हो रहा था. मैं कहा सर मेरे से नहीं रहा जाएगा, तो मैं 2 साल में तो पागल हो जाऊँ. तो उन्होंने कहा मैं क्या करना चाहता हूँ. मैंने कहा सर आई लाइक टू असिस्ट यू. तो आपको, तो उसमें फिर एज एन असिस्टेंट जाके दिलीप साहब को, राज साहब को सीन्स दिखाने, सुभाष जी से सीन्स डिस्कस करने, सौदागर के क्लाइमैक्स को लिखने में मेरा थोड़ा सा योगदान है. I got 70% marks out of the 10 points that I had given to Subhash ji then. And he said, I agree with you what you're saying, and logically speaking, they should die. Both of them should die in the film. That was the debate. And I said the kind of atrocities, जितने जुल्म किए इन्होंने अपने परिवार पर, दूसरे के परिवार पर, गांव के अंदर, इन दोनों को मर जाना चाहिए. They can't take law in their own hands. तो ये छोटी सी जर्नी है. एंड प्लस एज अ मास्टर ऑफ सेरेमनीज आई हैव डन 8 इवेंट्स विद लेट भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, 1 with Kalam Saab for the Microsoft Academic Summit, 2 with the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, 1 with Dr. Manmohan Singh, about 7 years with Vasundhara Raje ji when she was the Chief Minister of Rajasthan,
and also the Minister of State for MSME, and several protocol events with the former chief ministers like Sheila ji, late Sheila ji, and Jharkhand Mahotsav, and for a lot of corporate brands. So God has been kind. So अभिनव जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो कि अभी का करंट सिचुएशन है, जो करंट सिनेरियो चल रहा है बॉलीवुड में, आई विल पुट इट इन दिस वे, what is the suggestion from you for the upcoming youngsters, those who are willing to come to Bollywood, how they have to keep themselves in a way कि किसी भी तरह के अप्स एंड डाउन्स हो लाइफ में, बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन वो अपने कैरियर को, क्योंकि आज का जो सिनेरियो है, कई बार लोगों को ये लगने लग रहा है कि बॉलीवुड कोई एक थ्रेट तो नहीं बन रहा है, जिस तरह से जो करंट सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये आज से पहले नहीं था। तो आप आने वाले जनरेशन्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि आपको ये करना है, बॉलीवुड में रहना है और इस तरह से अपने लाइफ को सिक्योर रखें, क्योंकि दैट इज द मेन थिंग। एवरी फैमिली, अब आपके हमारे किसी के भी बच्चे अगर जाते हैं इस इंडस्ट्री में, हम ये चाहेंगे कि वो सेफ हो, सिक्योर हो, और जहाँ पे जो कर रहे हैं वो करके अपना आ जाए, भले वो नाम का है, उसमें बह ना जाए। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? भोले जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन करता हूँ। क्या ये सिनारियो सिर्फ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड में है? क्या हमारी मैक्रो सोसाइटी लेवल पर नहीं है? बिल्कुल। हमारे और आपके बच्चे, मेरे बच्चे भी उसी एनवायरनमेंट में रहते हैं। बिल्कुल। मेरे सामने वाले पार्क में होता है काम ड्रग्स का, और कैसे होता है, हमारी सोसाइटी में क्या नहीं है? So first of all, why Bollywood of the Indian film industry should be highlighted? Just because it's in glamour? ये तो कॉलेज स्टूडेंट में, एजुकेशन में होता है। बिल्कुल। ये तो गांव-गांव में होता है। तो उसी पद्धति से फिल्म्स क्या है, जब when I went to 1989 to address India's only conference of entertainment education for social change, I was representing India because there's a PhD done by Dr. Arvind Singhal by the University of Southern California, at the Annenberg School of Communication. So I said that, I was only 29 at that time, कि देखिए हमारी फिल्में हैं क्या, हमारा टेलीविजन है क्या? इट्स बेसिकली अ मिरर ऑफ द सोसाइटी, एक आईना है। अगर ये सब नहीं होता तो ये बातें आप जो देख रहे हैं वो नहीं होती। तो ये बात मुझको समझ में आई कि आपका पर्सनल कंडक्ट, आपके दोस्त, आपका परिवार, आपकी अपब्रिंगिंग कितनी सशक्त है, इस बात को समझने के लिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि वो देखते तो हैं फिल्म फेयर अवार्ड और आईफा अवार्ड, और सेट के पीछे क्या काम होता है। आप तो टेलीविजन वर्ल्ड से इतने मुस्तैद, कितना न्यूज़ से आपका संबंध रहा है इतने सालों तक, कितना मुश्किल होता है लाइव प्रोग्राम उठाना। मैं खुद जी के साथ काम कर चुका हूँ, आज तक के साथ काम कर चुका हूँ, दिल्ली आज तक के साथ काम कर चुका हूँ, जी बिजनेस के साथ काम कर चुका हूँ, A to Z न्यूज़ का मैं स्पोर्ट्स एंकर था, डीडी स्पोर्ट्स पे काम किया। कितना मुश्किल था बैक एंड काम करना, लाइव उठाना है। अभी भी हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, कितनी तैयारी करते हैं आप, किसी को कोई नहीं देखेगा। बिल्कुल। सो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड, एक तो बेसिक पाथ है लाइफ का कि आपने देखा होगा, पता नहीं, शायद मेरे फेसबुक पर अभिनव कांत चतुर्वेदी, मेरा नाम अभिनव चतुर्वेदी, वैसे कांत मैंने पंगे के लिए जोड़ दिया था। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरे फादर का नाम अभय कांत था, तो मैंने भी उस बचपने में आके अपना नाम लगा दिया। अभी उसको रेटिफाई कर दिया गया है, आधार कार्ड अब अभिनव चतुर्वेदी। तो पहले अपनी आइडेंटिटी क्या है। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट मैं, बाय द वे, देयर इज नो वर्ड कॉल्ड एक्ट्रेस। Yes, लेट्स true. गेट इट करेक्ट। with the mandate of the Oscars, the Academy of Hollywood, there's no terminology called actress. You're an actor. Yes.
देयर इज नो जेंडर बायस, नो जेंडर डिस्टिंक्शन। एक्टर, तो आप मेरे फेसबुक पे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा एक्टर। तो ये तय करना पहले पड़ेगा कि आप एक्टर बनना चाहते हैं या आप स्टार बनना चाहते हैं। और आप एक्टर बनते रहेंगे तो आपका प्रोसेस सिंपलर रहेगा। इंडस्ट्री में आज भी ऐसे साफ लोग हैं जो इंडल्ज नहीं करते। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप उन एग्जाम्पल को नहीं देखेंगे। यहाँ मसला आता है टीआरपी का, अब उसके बारे में ना बात की जाए तो अच्छा है। वैसे मुझे कोई इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि दे आर कॉल्ड टोटली रिग पॉइंट्स। टाइम का डब्बा कहाँ लगता है? किसी गांव में लगता है। ठीक है, लेट्स बी रियलिस्टिक इन टर्म्स ऑफ टू अंडरस्टैंड व्हाट द गेम इज ऑल अबाउट बिफोर यू गो एंड प्ले द गेम। And if you go to so you must understand first what are the requirements of the game. Well, casting couches are not a new phenomenon. People don't want to talk about it because they are part of the film industry. They can't voice their opinions. पर कुछ तो होगा, तो धुआं निकला तो आग कहीं तो होगी। बिल्कुल। मतलब ऐसे ही तो किसी को तुफैल नहीं कि साहब उठा के लिख दिया। मेरे बारे में आज तक क्यों नहीं लिखा गया? Stardust had to do an article. Stardust had to do an article, and very, very interestingly headline. They said, what should we write about you? I said, that's your problem, not mine. So they interviewed all my actors, saying that how safe is Abhinav Chaturvedi to work with. Because I never. ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आज आप। बिल्कुल कह रहा हूँ। And this happened. Okay. मैंने आज तक अपने 36 years of my work, I have never ever indulged. और उस पर बना दिया गया मुझे गुडविल एम्बेसडर ऑफ थाईलैंड, 2 बच्चों का बाप होने के बाद। देखिए, पहले मुरली भाई, पहले अपनी आत्मा को गवारा होना चाहिए। हम करना क्या चाहते हैं? हम किसी से शादी करके आए हैं, उसको अग्नि को साक्षी मान के आए हैं। हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो एक तरह से चलती है। जब तक हम अपने ये नेशनल फ्लैग जैकेट पे ऐसे नहीं पहना गया। वी आर ऑल वर्किंग फॉर आवर कंट्री, जिसकी कुछ डेकोरम है, उसकी कुछ मर्यादा है, उसका कुछ पैरामीटर है। आप दोस्ती कीजिए, हंसिए, बोलिए, गले में बाहें डाल के। बाय चॉइस भी अगर होता है तो जो होता है हो जाता है। पर if it becomes a habit, it takes you away from the main focus area, what you want to achieve in life. So goals should be very fixed point. अच्छा, एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि नंबर की गेम है, नंबर 1, नंबर 2। अरे भाई, 1 से 100 तक तो अमिताभ बच्चन ने गिनती तो 101 से शुरू होती है मेरी नजर, या रजनीकांत सर हैं। ये लेजेंड्स क्यों हैं? इनको पढ़िए, इनकी बायोग्राफीज पढ़िए, इनकी स्ट्रगल्स को देखिए। ये तो ऐसा काम नहीं करते। ये क्यों इतने महान है कि इनको जब हम खड़े जाते हैं लाइन तो आज तक संडे के दिन 5 बजे जब जलसा होता है, कोविड को छोड़ दीजिए अभी, दैट इज द रियल अर्निंग। मेरे घर के बाहर 5 लोग खड़े होंगे क्या? सही बात। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रोल मॉडल हम किसको बनाएं। मेरे हिसाब से अगर आप रोल मॉडल अपने भारत देश के झंडे को बना लें कि मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, खत्म हो गई। आपको कभी गलत करने देगा। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है आज अभिनव जी, कि अगर झंडा आपका रोल मॉडल हो जाए ना, तो आपको कुछ भी गलत नहीं करने देगा अपने आप से ही। आप मेरा फेसबुक का पेज उठा के देखिए, प्रोफाइल पेज, उस प्रोफाइल पे लिखा हुआ है भारत के झंडे, मिलेनियम फ्लैग जो नवीन जिंदल ने लगाया है राजीव चौक पे, उसी के अंडर डीडी उर्दू में मैं एंकर कर रहा था।
उससे पहले मेरी कोई और फोटोग्राफ थी, मैंने कहा ना अब यही फोटोग्राफ लगी, because that's what we are working for. We should take pride in our nation, and the whole axis and the thinking changes. ये फिर एक पूरे आपका कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट या तो भारत के झंडे पे जाएगा या भारत के संविधान पे जाएगा, सीधा. Nobody is above the law of the land. Forget it. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. ये बिल्कुल आपने सही बात करी. अगर हम लोग एज ए इंस्पिरेशन अपने इंडियन फ्लैग को देखें तो ऑटोमेटिकली हमें इंडिया के लिए और इंडिया के प्रोस्पेक्ट्स के लिए क्या करना है ये सोचेंगे तो हम खुद ही कभी भी गलत नहीं करेंगे. मुरली जी, मैं आपको यहाँ एक सेकंड के और एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ उन सबको जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं. हाँ. ओलंपिक्स में इट इज नॉट कॉल्ड अ स्पोर्ट्स, इट्स कॉल्ड अ डिसिप्लिन बाय डेफिनेशन. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. इससे पहले वॉर गेम्स होते थे, ओलंपिक्स की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए आप. डिसिप्लिन क्यों है? कितना पैसा मिलता है ओलंपियंस को, आपको उनकी जिंदगी मालूम है. लेकिन जब दीपिका कुमार को मिलता है तो आंख से आंसू निकलते हैं. जब सुशील कुमार को कॉमनवेल्थ में मेडल मिलता है तो यहाँ नेशनल फ्लैग गाया जाता है. जब राज्यवर्धन राठौर को जी को मिल रहा था तो प्राइड से यहाँ हाथ रखते. That's what we should play for. You see any country, आप उनके स्पोर्ट्स को देखिए. जब वर्ल्ड कप्स होते हैं तो जब उनका नेशनल फ्लैग होता है, एंथम के टाइम में वो रोते हैं, गाते हैं. हमारे यहाँ तो जब भी नेशनल फ्लैग बढ़ता है मैं तो खड़ा होता हूँ. खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल सही. चाहे वो बैकग्राउंड में कहीं कान में सुनाई दे जाए. See, this is, we are born from this soil and we have to go in this soil. That is our country. I'm sorry, I'm a very, very staunch believer in this fact and there is no compromise whatsoever. Abhinav ji, this is what the people of India should understand from you. आज मैं बस आपसे और ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा. आपने ऐसी इंस्पिरेशनल बातें करी हैं जो कि हर इंडियंस को समझना चाहिए. मैं जितने भी लोग आज ये प्रोग्राम देखें मैं उनको ये कहूँगा कि आप बस एक बार इनकी इंस्पिरेशनल बातें सुन लें. आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या सही और क्या गलत है, लाइफ में क्या करना चाहिए. इट्स बिन रियली इंस्पिरेशनल. अभिनव जी, आप हमारे साथ आए, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना टाइम निकाला, हमसे बात करी और करंट सिनेरियो ऑफ बॉलीवुड आपने लोगों को समझाने की कोशिश करी. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. वंस अगेन थैंक यू. हैव अ गुड डे. इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू. गुड इवनिंग. थैंक यू. बहुत बहुत अरेकाने का आभार पुनः सभी को. और ऐसे ही आप लोग अपने काम में अग्रसर रहिए. वी आर फेसिंग वन ऑफ द वर्स्ट टाइम्स इन द पैंडेमिक. So abide by all the laws and regulations suggested and the directives by the government of India and the state governments. And please be safe. Work from home as much as possible. I know it's a very tough time, but keep on working. And one more thing before I leave. You mentioned that हमें थिएटर में सिखाया गया है कि one should listen. The art of listening somewhere is getting lost. It is becoming a dying art. ये आज आपने, ये अभिनव जी आज आपने एक बात करी है जो कि आई गेस मैं बहुत छोटा था और मैं किसी सीनियर के साथ ही बैठा था. आई थिंक फ्रॉम द मीडिया इंडस्ट्री ओनली. What he has said me at that point of a time कि मुरली, if you want to become a good person, you have to be a good listener. और वही बात आज आपने भी वही बात करी आज. You have to be a good listener, then only the things will move on. हमारी भारतीय संस्कृति, and I am an apolitical man, हमारी भारतीय संस्कृति 5000 साल से पहले से श्रुति और स्मृति का देश रहा है. It was oral tradition in early Vedic periods. There was later Vedic period में टेक्स्ट आया जब वेदों को लिखा गया. तो वो सोसाइटी कितनी इवॉल्व थी, ये मैंने दिलीप साहब से सीखा.
मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आपका कौन सा सबसे बढ़िया सीन होता है जब आप काम, बोले जब मेरे पास कोई डायलॉग नहीं होता। तो क्लोजअप में जाता है, तो आप जब दूसरे आदमी को सुनेंगे तब आप उसको देखिए। साउंड का प्रोसेस आप मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं, यूर अ टेक्निकल पर्सन, यूर अ टेक्निकल पर्सन योर सेल्फ इन द न्यूज़ इंडस्ट्री। तो साउंड का प्रोसेस है कान से सुनना, ब्रेन में ले जाना, उसको प्रोसेस करना और फिर मुंह से बोलना। यहाँ बिल्कुल क्या होता है, बिल्कुल। यहाँ से सुना, यहाँ से बोल दिया, उसका मेंटल प्रोसेस से कोई मतलब नहीं। तो जी। उससे जिंदगी में ठहराव नहीं आता। हम्म, और अच्छा काम करने या सीन की रिक्वायरमेंट कुछ होती है, "ए, क्या कर रहा है बस", वो अलग बात है। लेकिन उसको समझने के लिए पहले आपको असिस्टेंट से सीन की रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी, उस कैरेक्टर को समझना पड़ेगा जो आप नहीं है, हम्म, यू आर प्लेइंग समबडी एल्स। सो आई वुड से दैट अगर ड्रीम्स हैं तो जरूर जाइए। देखिए मैं गया, मैंने काम किया, मैं उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन मुझे मलाल नहीं है, क्योंकि क्रिकेट ने मुझे सिखाया कि क्या चाह रहा है तो यार ट्राई तो करो, ट्राई टू और आप कन्वर्ट दैट हाफ चांस। और आपने वो बड़ी बात करी कमबैक की। आप कभी भी कमबैक कर सकते हो। इट हैज यस, टू बी देयर, इट हैज टू बी देयर। मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। वो भी सर्जन हमारे साथ नहीं रहे, ऋषि कपूर साहब। ही वॉज अ ग्रेट हीरो एंड वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव एक्टर्स आई हैव सीन इन माई लाइफ, हाइपर सेंसिटिव एक्टर। जब स्टारडम हटी and he switched off to character roles. You see Makbul, हम्म, you see any of the film, हम्म, superb. सुपर। Amitabh Bachchan ji himself, when he dropped the angry young man and transformed. Last night I was watching this film called Wazir. Netflix पे मैंने वजीर देखा, then I got to see Pa, then I got to see Pink. So he himself transformed himself. The art of transforming and keep on working towards the ultimate goal is to keep growing. It's like, going to a classroom every morning with a clean blackboard. And I again quote the example of cricket. You may have 20,000 runs at your back, like Sachin Tendulkar. But when he has to go to play the next innings, he has to take a fresh card all over again. He doesn't ट्रू। have a excess baggage of those 22 odd thousand runs or 23,000 runs. वो नया मैच खेलने का है. So every film has to be, when it's any work that is taken, is has to be a new day of learning. So as long as you're prepared to clean off that blackboard of a Thursday, which you're recording today, to start another Friday, you sorted. ट्रू। ट्रू। अभिनव जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपको और भी कई कई चीजों पर बुलाता रहूंगा और कोशिश करूंगा Please, और भी लोगों के साथ आपको जोड़ूं। कुछ लोग इंटरव्यूज लेके आऊंगा मैं अपने प्लेटफॉर्म पे, और उसमें मैं आपको अपने साथ रखूंगा एज ए पैनलिस्ट। और वंस अगेन थैंक यू फॉर योर इंस्पिरेशनल वर्ड्स। जय हिंद। my pleasure. अनेकानेक आभार मेरे कि आपने मुझे बुलाया, and I wish your channel and yourself and your family all the very best for all your future endeavors, and may this channel become a big one in very short time. That's my humble prayers to you. थैंक यू अभिनव जी। Thank you, थैंक यू। Murli. Thank you so much.